So, hello everyone. Today we are going to learn about Vedic period, one of the most important phases of the ancient Indian history. In this video, we will understand its timeline, society, religion, economy, and other important features in a simple step-by-step manner. Okay, so let's start it. तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक पीरियड का इंट्रोडक्शन। So, in this slide, we are introduced to the Vedic period, also known as the Vedic Age. This period lasted from around 1500 BCE to 500 BCE, and it is divided into two main parts. First is the early Vedic period, which lasted from 1500 BCE to 1200 BCE. Okay, and the second is the later Vedic period, which lasted from 1100 BCE to 500 BCE. Okay, this period is called the Vedic period because the knowledge and culture of this time are mainly described in sacred texts known as the Vedas. Okay, now comes to the next slide. Okay, चेक कर लो। Okay, सही लिख रहा है। Okay, this slide talks about Ved Vyas, an important sage in Indian history. He is believed to be the person who compiled and organized the Vedas. He is also known as the traditional author of the great epic Mahabharata and is considered one of the most respected scholars in ancient India. His work helped preserve the religious and cultural knowledge of the Vedic period for future generations. Okay, now comes to the third slide. That is also the very important topic, but it is not covered in Vedic ages. Okay, please learn it separately. Okay. In this slide, we learn about the Indo-Aryan migration, as you see. Okay, the Aryans settled in a region called Sindhu. Sub-Sindhu means the land of seven rivers. Now we are talking about these rivers. These rivers were Indus, Beas, Jhelum, Ravi, Chenab, Satluj, and Saraswati. This area becomes the center of early Vedic civilization. Okay, ये इंडो आर्यंस हैं जो बाहर से आए थे अपने यहाँ रहने के लिए। तो ये क्या है, जहाँ रहते थे तो वो क्या है, 7 रिवरों से वो चीज़ बनी हुई थी पूरा। मतलब जो एरिया है ना, वो एरिया पूरा 7 रिवरों से घिरा हुआ है। तो उस एरिया को नाम दे दिया इंडो आर्यंस करके। ठीक है? बट जो आर्यंस थे, जो इंडो और आर्यंस थे ना, तो जो आर्य थे, आर्य क्या होते थे? आर्य को हम हमेशा श्रेष्ठ रखते थे। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट साइड रहते थे। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट साइड के थे और नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या चलता था? वहां पे पैसा का दिखावा, ठीक है, गाड़ी ले लिया, घोड़ा ले लिया, आज भी देखते हैं अपन ये सब चीजें। और जो साउथ में थे, ठीक है, जो इंडो, उनको हमने कहा द्रविड़, क्योंकि इंटेलिजेंट थे। साउथ से देखते हो हमेशा ज्यादातर साइंटिस्ट वगैरह हर लोग साउथ से निकलते हैं। ठीक है, तो वो लोग साउथ से थे भाई। तो दोनों को मिला के आपका इंडो आर्यंस बना। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so the word Arya is explained. The term Arya means noble, civilized, and respectable persons. Okay. It was not originally used to describe race, but rather to describe people who followed good values and behavior. Okay. So the origins of the Aryans. Now we're talking about the origins of the Aryans. Some historians like Max Muller believed that Aryans came from Central Asia. Okay. And another scholar, Bal Gangadhar Tilak, suggested that they came from the Arctic region. However, historians still debate this topic, and there is no single confirmed answer.
बिकॉज देखो, कहने की बात ये है कि कुछ हिस्टोरियंस थे, जैसे कि एक थे मैक्स मुलर, ठीक है ना, जिन्होंने ये बताया कि ये जो आर्यंस आए हुए थे, ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, और इनको संस्कृत आती थी भाई, बहुत अच्छी संस्कृत आती थी इनको। ठीक है, मतलब सोचो, संस्कृत अपने ही इंडिया में ही नहीं, बाहर भी थी पहले से भी। मतलब वो लोग भी जानते थे, बट उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट नहीं किया, वो लोग आगे बढ़ गए उस चीज को सीख के, कोई दूसरी लैंग्वेज उन्होंने पकड़ ली। ठीक है। बट बाल गंगाधर तिलक का कहना क्या है कि ये लोग आर्कटिक रीजन से आए हुए हैं। बट अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब देना है मैक्स मुलर के आधार पर, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, तो आपको सेंट्रल एशिया याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ओके। हाउएवर हिस्टोरियंस स्टिल डिबेट ऑन दिस टॉपिक एंड देयर इज नो सिंगल कंफर्म आंसर। ओके। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दे स्पोक संस्कृत एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ओके। They led a rural, semi-nomadic life as compared to the Indus Valley people who were urbanized. Okay, it is believed that they entered India through the Khyber Pass. ऐसा माना जाता है कि उन्हें खैबर पास के माध्यम से भारत में प्रवेश किया गया होगा। ठीक है ना। ओके, खैबर पास मतलब वो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, चाइना वाला बॉर्डर जो चलता है अपना, जम्मू कश्मीर से सीधे वहां से। ओके। ठीक है ना। रूल डिफरेंस, अर्ली वैदिक पीरियड वर्सेस लेटर वैदिक पीरियड में रूल डिफरेंस के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके। So it is believed that they entered through the Khyber Pass, a mountain pass located in the northwest region. They spoke Sanskrit, as I know, as I told earlier, sorry, which is the part of the Indo-European language family. They lived a rural and semi-nomadic life, mainly depending on the cattle and agriculture. ठीक है, मतलब डेवलप्ड हो चुके थे अपन इंडियन वैली सिविलाइजेशन से, काफी डेवलप्ड हो चुके थे, बट ये लोग उस तरीके से रहना पसंद नहीं करते थे। ये लोग गांव में ही रहना पसंद करते थे, गांव के कल्चर से ही, मतलब अपने जानवर वानवर के साथ खेती वेती करके ही रहना, खुश रहना चाहते थे ये लोग। ठीक है। नाउ अब अपन डिफरेंस पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में। ठीक है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड द किंग वाज कॉल्ड एज राजन। ओके। जो किंग होता था उसको हम राजन बुलाते थे। Society was organized into groups such as families, village, and tribes. Okay. Important decisions were made in assemblies called Sabha and Samiti, which gave people a voice in governance. Okay. Now we talk about in later Vedic period, small kingdoms developed into larger states called Mahajanpads. जिनको हम कहते थे महाजनपद। ओके। मतलब जो छोटे छोटे जगह पे पहले उन्होंने अपने अपने वो गढ़ बना रखे थे, अब उनको क्या है, स्टेट में तब्दील कर दिया और उसको नाम दे दिया महाजनपद। ठीक है। द किंग्स पावर इंक्रीज्ड, राजा की ताकत बढ़ी, एंड स्पेशल सेरेमनीज सच एज राजसूया, वाजापेय एंड अश्वमेध वर परफॉर्म टू शो अथॉरिटी। लाइक मैं बताता हूँ, राजसूय होता है कि एक राजभवन हो रहा है भैया, बलि दी जा रही है। ठीक है। और वाजपेय, वाजपेयी भी ऐसे ही, मतलब एक कल्चर्स होते थे उनके कि हाँ भाई हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम राजा हैं। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ वगैरह के बारे में आपने रामायण में सुना ही है कि एक घोड़ा होता था। ठीक है। तो उसकी भी बलि बलि चढ़ाते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे ये नहीं होता था कि भाई उसको दौड़ा रहे हैं पूरा। वाजपेयी, हाँ वाजपेयी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ तो मैं। वाजपेयी ये होता था, वाजपेयी में क्या होता था कि आपके जो नए और राजा और रानी की जो नई नई शादी हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे, वो घोड़े पे बैठ के पूरे अपने जो भी उनका राज्य है उसका भ्रमण करते थे। ठीक है। तो मतलब जहाँ पे थक जाते थे, रात हो जाती थी, तो वहीं पे शेल्टर लगा के उसी गांव में रुक जाते थे, तो लोग बाग वहां पे उसकी के राजा आए हमारे, तो उनकी आवभगत होती थी बहुत ज्यादा। ठीक है। ओके। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन डिफरेंस। व्हाट इज द रिलीजन डिफरेंस बिटवीन अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। ओके। So, during the early Vedic period, people worshipped natural forces such as sun, fire, wind, rain, thunder. मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में आदमी सूरज को पूजता था, आग को पूजता था, हवा को पूजता था, पानी को पूजता था। ठीक है, बिजली को पूजता था। ठीक है। सो देवर नो टेम्पल्स फॉर आइडल वर्शिप्स एट दैट टाइम। ओके। बट वी नो इन द इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, वी फाउंड, क्या बोलते हैं, वी फाउंड दैट शिवलिंग that is 5 centimeter long,
और जो पिंडी पिंडी है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, ठीक। इन द लेटर वैदिक पीरियड, religious practices became more complex. People began worshipping gods like Brahman, Vishnu, and Indra, and rituals and sacrifice became more important. Priest gained more power in society. Like, समझो यहाँ पे क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, ब्राह्मण हुए, ठीक है, लोग कोई ब्रह्मा को पूज रहा, कोई विष्णु को पूज रहा है, कोई इंद्र को पूज रहा है, ठीक है, कोई बलियां दे रहा है भाई दबा के। तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, पुजारियों का थोड़ा वो रिलीजन थोड़ा बढ़ गया बहुत ज्यादा। ठीक। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदास। ओके, तो बेसिकली द फोर मेन वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, Rigved contains the oldest Vedas and it has 10 mandals. 10 mandals like 10 books. Okay. It has 1028 hymns. 1028 hymns means bhajan. Okay. And it also contains 10,600 chand that we also known as verses. Okay. And in Samved contains songs and musical chants. Okay. And in Yajurved we contains instructions for performing rituals, and it is also divided into two parts, Krishna Pach and Shukla Pach. Okay. Now the Atharvaved. Atharvaved contains spells, prayers, and medical knowledge. Okay. These texts form the foundation of Vedic religion and culture. But in Rig Ved, in the 10th mandal, in the 10th mandal, मतलब 10वीं जो बुक थी, in the 10th mandal, we are developed one more thing, that is Varna system. Okay. Now we talked about in the next slide. So comes to the next slide. As I want to say that one system, one system which is divided the society into four groups. Okay, Brahmins, Kshatris, Vaishya, and Sudras. So we know about the work of these four groups. In Brahmins, it is belong to priests and teachers. In Kshatris, they belong to warriors and rulers. The ब्राह्मण का काम था भाई ज्ञान बांटना, ठीक है, ज्ञान बांटना, पूजा वूजा करना, ये सब, क्योंकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे। मतलब जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, उसको हमने एक श्रेणी दे दी थी ब्राह्मण। ठीक है। नाउ क्षत्रिय, जो वॉरियर्स होते, रूलर्स, मतलब इनका काम होता था अपनी प्रजा की रक्षा करना, ठीक है, अपने घर परिवार के लिए लड़ना भाई। ठीक है, क्षत्रिय का धर्म ये होता था। ठीक है, कि हर किसी से रक्षा करना। वैश्य, वैश्य होते थे फार्मर्स और ट्रेडर्स, मतलब जो आपकी खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो सब लोग आ जाते थे आपके वैश्य में। ओके, नाउ कम्स टू द शूद्र। शूद्र होते थे क्या, इनका काम होता था सिर्फ और सिर्फ सेवा करना, वर्कर्स एंड सर्वेंट्स। ओके, दिस सिस्टम बिकेम मोर रिजिड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। व्हाई? बिकॉज इन अर्ली वैदिक पीरियड लोग के कर्म से उसको जाना जाता था कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसके पास स्किल हो, टैलेंट हो, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी आगे जाके थोड़ी बिगड़ी हैं, और यहाँ से अपना ये कास्ट सिस्टम वगैरह ये चालू हो गया था। ओके, सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी आर talking about economic differences between early Vedic period and later Vedic period. Okay, so in early Vedic period, main sources of income were agriculture, animal husbandry, and trade through the barter system. barter system is, जैसे कि मेरे पास ये चश्मा, मैंने चश्मा आपको दिया और आपसे मैंने पेन ले लिया, मुझे पेन की जरूरत है,
तो चश्मे की जरूरत हो तो हमने चीजें एक्सचेंज करनी तो उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम जब कॉइन्स वगैरह नहीं चलते थे। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड इकोनॉमिक एक्टिविटीज expanded टू इंक्लूड मेटल वर्क, pottery, carpentry, use of early coins for trade. This shows how the economy became more advanced over time. Okay, जब कॉइन्स आ गए तो चोरी चकारी भी बढ़ने लगी भाई बहुत ज्यादा, है ना। लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो गई कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा अच्छी लाइफ जिएगा, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से रहने को मिलेगा। तो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी भेदभाव का आदमी करने लगा। पहले ये सब नहीं चलता था, पहले इंसान खुश रहता था कि भाई ठीक है तुम मुझे ये दे दो मैं तुमसे ये ले लूंगा, आप खुश रहता था। अब क्या हुआ, अब कॉइन्स की वैल्यू बढ़ गई तो फिर अब ऊंच नीच वाली बात आ गई, है ना। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी डिफरेंस in the slide. Okay, so in the early Vedic period, women were respected and allowed to participate in the meetings and ceremonies. Societies was relatively simple and child marriages was not common. लाइक पहले जो था अर्ली वैदिक पीरियड उसमें वुमेन्स को मतलब ये अलाउ था, इतनी रिस्पेक्ट देते थे उनको कि आप भी मीटिंग में बैठ सकते हो, हमारे साथ सेरेमनी में बैठ सकते हो, हिस्सा ले सकते हो, आपको भी राय देने का हक है। ठीक है, मतलब सोसाइटी बहुत ज्यादा सिंपल थी, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती थी। ठीक है, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड द वन सिस्टम बिकेम स्ट्रिक्टर। वन सिस्टम समझ लो भाई, जातिवाद फैलेगा। ठीक है कि भाई हम तो हैं भाई ब्राह्मण, हम तो हैं भाई क्षत्रिय। ठीक, वुमेन्स राइट्स डिक्रीज्ड, वुमेन के राइट्स कम हो और चाइल्ड मैरिज बढ़ने लगी। कैसे, भाई कोई बूढ़ा राजा, उसको कोई लड़की अच्छी लगती तो उसके घर जाएगा, पैसे देगा भाई और उससे ले जाएगा अपने साथ और एक शादी का नाम दे दिया जाएगा उसको कि हमने भाई इससे शादी कर ली। ठीक है, तो सोशल डिफरेंसेस बिकेम स्ट्रोंगर ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, सो in this video, we learned about the Vedic period, starting from the migration of the Aryans to the development of the society, religion, and the world system. We also understand the differences between the early and later Vedic period and how these changes shaped ancient Indian civilization. The Vedic period laid the foundation for many traditions and social systems that still influence India today. Understanding this period helps us better understand the roots of Indian culture and history. If you found this video helpful, make sure to like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel for more simple and easy history lessons. Thank you for watching.